بانی پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں پیش۔ گواہ نے توشہ خانہ تحائف کے 100 صفحات پر مشتمل ریکارڈ میں عدالت پیش کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ گواہ نے پرائیویٹ اپریزر کا قانونی طریقہ کار بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کی گواہ پر جزوی جرا۔ آئندہ سماعت پر بانی چیئرمین کے وکیل سلمان صفدر بھی گواہ پر جرا کریں گے۔ سماعت کے دوران کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر کا بیان بھی ریکارڈ۔ کیس میں مجموعی طور پر 3 گواہان کی شہادت قلم بند کی جا چکی ہے۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو پی ٹی آئی کے مطالبات کا انتظار۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کا چارٹر آف ڈیمانڈ ملنے کے بعد حکومت اپنا چارٹر بھی سامنے لائے گی۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ 8 فروری کے انتخابات، 9 مئی کے مجرموں کو سزاؤں اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر حکومتی کمیٹی اپنا لاہے عمل بنائے گی۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا کوئی الگ سے چیئرمین نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہی مذاکراتی کمیٹی کی سہولت کاری جاری رکھیں گے۔ سیاسی استحکام کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ بطور چیئرمین سینٹ میری ترجیحات میں شامل ہے کہ بزنس اور معیشت پر زیادہ کام کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے نئے ایونیو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت پر توجہ دیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہیومن کیپٹل اور انڈسٹریز کی ماڈرنائزیشن ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ملکی برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھانے کا منصوبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اڑان پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہے جو 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق وفاقی حکومت پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھائے گی۔ پروگرام کے تحت سالانہ ہزاروں آئی ٹی گریجویٹس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب کی معیشت کی بنیاد پر فراہم کرنا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس توشہ خانہ کے پہلے کیس جیسا ہے۔ القادر کا کیس اور توشہ خانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بولی بانی پی ٹی آئی کیس لڑ رہے ہیں تو ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی کے کہنے پر ڈیل نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑی ان کے کیسز معاف کر دیے گئے۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہمارا مطالبہ ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ ان لوگوں نے پہلے کہا 9 مئی واقعات میں ہمارے لوگ نہیں، اب کہتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، سزا کیوں دی؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے سیاسی حریف جماعت پر وار۔ نیوز کانفرنس میں کہا پہلے فیصلہ کر لیں آپ کے لوگ تھے یا نہیں۔ بشرا بی بی نے موکل چھوڑے ہوں گے جن کی ویڈیوز بن گئیں۔ پنجاب نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایک حکومت ہے۔ کرم اور پارا چنار کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ کرم اور پارا چنار کی سڑکیں کھلوانا گنڈا پور کا کام ہے، شہباز شریف یا مریم نواز کا نہیں۔ پنجاب کی ایئر ایمبولنس کا فائدہ پارا چنار کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ عطا تارڑ نے وفاقی حکومت کا وائٹ پیپر کاپی کر کے ہمارے کھاتے میں ڈالا۔ خیبر پختونخوا کے قرضے وفاق کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر اطلاعات کے بیان پر رد عمل۔ کہا خیبر پختونخوا کا کل قرضہ 725 ارب روپے ہے اور وفاق ہر مہینے اتنا ہی قرض لیتی ہے۔ شہباز شریف کے صرف 2 سالہ اقتدار میں پاکستان کا قرضہ 27,000 ارب روپے بڑھا ہے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا اگر عطا تارڑ سے وائٹ پیپر دلوانا ہے تو بہتر ہے بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگ لیں۔ یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کے کئی شہروں میں چھاپے۔ گجرانوالہ اور گجرات سے انسانی سمگلنگ میں ملوث 9 ملزمان گرفتار۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث بدنام زمانہ ایجنٹ ظفر اقبال کو منڈی بہاؤدین سے پکڑا گیا۔ ملزم نے کمسن بچے کو اٹلی بھجوانے کے نام پر 19 لاکھ روپے ہتھیائے۔ اشتہاری ملزم شہزاد یوسف کو لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہونے پر کھاڑیاں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم محمد شفیق اور خضر حیات نے فیکس 40 لاکھ روپے ہتھیائے۔
मुलजिम अजमत अली ने भी शहरी से 50 लाख रुपए बटोरे। FIA ने मुलजिम मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, असद अब्बास को भी धर लिया। यूनान कश्ती हादसे में नामजद FIA अफसरान का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तमाम दरखास्त गुजारों को जाती तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। मौक़िफ़ सुने बगैर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। नोटिस के बावजूद अगर FIA अफसरान पेश न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत ने FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक दायर दरखास्त निपटा दी। गुज़िश्ता साल यूनान कश्ती हादसे में 286 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। DG FIA ने तहकीकात के लिए 38 अफसरान को आज तलब किया था। पाराचनार के रिहायशियों ने अमन से उम्मीद लगा ली। कोहाट जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होगा। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस फैसला नहीं हो सका था। जिरगा मेंबर का कहना है मुआहदे पर अपर कुरम के फरीक ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर टल पाराचनार शाहरा 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी। टल पाराचनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। कराची में एहतजाजी धरनों का 5वां दिन। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। दफातर, कारोबारी मराकिज़ और दीगर मकामात पर पहुंचने के मुतादिद रास्ते बंद। मतलूबा मकाम तक पहुंचने के लिए तवील चक्कर काटना पड़ता है। रास्तों की बंदी से मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना भी दुश्वार। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चौरंगी चारों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। जोहर मोड़ आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सफूरा चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। 5 स्टार चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अंचोली शाहराह पर भी एहतिजाज जारी। कराची में धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। शर्जील मेमन और IG सिंध से धरनों पर बात हुई है। पाराचनार की वजह से कराची के शहरियों को क्यों सजा दी जा रही है। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में धरने अब पुरम नहीं रहे। हुकूमत सख्त शराइत पर मुश्तमिल टैक्स तरमीमी बिल ला रही है। इस बिल से नॉन फाइलर्स सख्त मुतासर होंगे। पीपल्स पार्टी इस तरह के कावानीन की मुखालिफत करेगी। दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है और हम 4G से भी पीछे जा रहे हैं। हमें IT शोबे को मजबूत करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीम में बेहतरी की बुनियाद रख दी। चीन की तर्ज पर इब्तिदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए एक ही अथॉरिटी कायम करने के लिए इक़दामात। पंजाब के PSRP स्कूल्स में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। स्कूल्स की आउटसोर्सिंग से स्कूल्स में तलबा की तादाद में कई 100% इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। दोनों पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तानियों बिलखसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से मुतल्लिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, मौशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और UAE इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। सफ़ीर UAE बोले, पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं तो नेट इशू की वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं और हमें डाउनलोड करने में इशू होता है। सिर्फ हमारी हुकूमत से यह अपील है कि इंटरनेट सर्विस को बेहतर किया जाए। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग मेरे पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आते हैं तो इंटरनेट ना चलने की वजह से या स्लो होने की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इंटरनेट की तेज रफ्तारी का इंतजार तवील हो गया। सारिफीन कछुए की रफ्तार से चलते इंटरनेट से उकता गए।
स्लो इंटरनेट के ऑनलाइन कारोबार पर मनफी असरात, बर वक्त ऑर्डर डिलीवर न करने से फ्रीलांसर्स को भी नुकसान का सामना। ऑनलाइन तालीम, IT इंडस्ट्री और दीगर शोबे स्लो इंटरनेट का शिकार हो गए। मुल्क भर की तरह अलीपुर चट्ठा में सारिफीन स्लो इंटरनेट से सर पकड़ कर बैठ गए। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का कहना है कारोबार ठप होने से घर का निज़ाम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। गैस की लोड शेडिंग बहुत है, आती नहीं है कि रोटी खाना बाहर से लाना पड़ता है। जब गैस आती है उसका प्रेशर ही नहीं होता। गैस तो आ नहीं रही, बाहर से खाना लेके आते हैं, रोटियां वगैरह भी बाहर से लगवाते हैं, तो जो आती है वो हवा आती है, गैस तो आती नहीं है। सुई गैस आती नहीं है और LPG इस्तेमाल करनी पड़ी है, बड़ी परेशानी है। ये वो गैस महंगी है, जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। गैस नहीं आती है और लकड़ियों पे खाना पकता है। लकड़ियाँ भी बहुत महंगी है, 1600 रुपये माना लकड़ियाँ, और वो भी गीली मिल रही हैं। जो जलती है तो जलती है, नहीं जलती तो नहीं जलती। मौसम सरमा में गैस का बहरान शदीद हो गया। घरेलू सार्फिन को 8 घंटे तक की गैस लोड शेडिंग का सामना। ज़राए के मुताबिक गैस की यौमिया तलब 6800 MMCFD है, जबकि पैदावार 4290 MMCFD से ज़ायद है। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को मसाइल का सामना। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं सुबह नाश्ते के औकात में गैस नहीं आती। सारा दिन में जो गैस होती है वो भी खाना बनाने के लिए नाकाफी है। पानी तक गर्म नहीं कर सकते, मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्द मौसम की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू मनफी 13 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। बर्फबारी से अस्तौर के बलाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत मनफी 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, पिशावर में भी शदीद सर्दी के डेरे। उधर पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का रात बरकरार। हद्दे निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। पंजाब भर में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सर्द हवाएं चलने से सूबाई दारुल हुकूमत ठिठर कर रह गया। लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान। जो बाइडन ने अपने पैगाम में कहा, जिमी कार्टर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप बोले, अमेरिका के लिए खिदमात पर कौम जिमी कार्टर की मकरूज है। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का इंतकाल 100 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने अमेरिका के 39वें सदर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, आलमी अमन के लिए जिमी कार्टर की खिदमात को याद रखा जाएगा। नया साल आ रहा है, अल्लाह करे ये नया साल पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए खुशाइंद हो, खुशहाली का हो, अमन और सलामती का हो। हर कोई नया साल जो है एक अपना मोटिव रखे कि इस साल मैंने क्या अचीव करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, अपने लिए तो करना है और लोगों की खुशी में क्या कंट्रीब्यूशन करनी है। आई थिंक हर किसी का सोच के जब हम चलते हैं तो आई थिंक हमारी लाइफ का भी कोई मकसद निकल आता है। यही पैगाम है कि एक दूसरे के साथ, हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आवाम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चले। हुकूमती और अपोजिशन सियासी शख्सियात साल नौ पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो। MNA सीमा जेलानी का कहना है, खुदा करे नया साल मुस्लिम उम्मा के लिए खुशियों भरा हो। MNA ज़ेब जाफर ने तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद दी। ज़र्क मंदोखेल ने कहा, अवाम और हुकूमत एक दूसरे का साथ देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानीज़ को और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में इस वक्त बसते हैं, उनको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को और पाकिस्तानी अमेरिकन जो कि US में हैं, उनको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद हो। कौंसल खाने पाकिस्तान जद्दा की तमाम टीम और मेरी जानिब से आने वाले नए साल की तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिली मुबारकबाद। पाकिस्तानी सुफरा और कौंसल जनरल की हमवतनों को साल नौ की मुबारकबाद। कौंसलर जनरल जद्दा आयरलैंड से पाकिस्तानी सफ़ीर की मुबारकबाद। सफ़ीर पाकिस्तान बेलारूस सज्जाद हैदर खान, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान स्कॉटलैंड राना समर जावेद ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।